online lectures. This is our fourth lectures on marine pumps. In this lectures we will going to discuss about one of the most important topic which is mostly always and frequently asked in MMD orals, DM interview, and our topic is pump cavitation. So first of all, last lectures we were discussed about why centrifugal pump can't handle air or vapor. Last to last lectures we were also discussed about how centrifugal pumps works. So in this lectures we are going to deal with pump cavitation. What is pump cavitation? So cavitation is an undesirable phenomenon for the pumping operation of the pump. So what is cavitation? What is cavitation in pump? How can we define this terminology? So first of all, if the pressure of any fluid, falls below the vapor pressure of fluid at that specific temperature is called cavitation. मैं इस डेफिनेशंस पे आऊंगा, एक्चुअली इस होल लेक्चर से इसी डेफिनेशंस पे है, तो मैं इस डेफिनेशंस पे आऊंगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, इसकी कॉजेस पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो सारी चीजें मैं बताऊंगा. ये मैंने आपको एक सिंपल डेफिनेशंस बताया. ओके, डेफिनेशंस हमारी क्या है? इफ pressure of any fluid falls below the vapor pressure of fluid at that specific temperature leads to cavitation, or that is called cavitation. ओके, तो सबसे पहले मैं सेकेंड लेक्चर्स पे अपने जाता हूँ. वर्किंग प्रिंसिपल्स हमारी क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल, सपोज दिस इज आवर रिजर्वायर, ओके, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड सक्शन लाइन. This is what called suction line. Got it? Impeller. Okay. Backward curve wheels. Got it? Now, this is what called the bore of impeller, which is connected with the shaft, and that shaft itself coupled with electrical motor. Got it? So now, as soon as we supply electrical energy to the electrical motor, that electrical energy converted into mechanical energy, and that mechanical energy utilized to drive the shaft. Got it? So that mechanical energy utilized to drive the shaft, and shaft is connected with the bore of impeller. So shaft rotates means the impeller starts to rotate. So as soon as impeller rotates, there is low pressures created at the eye of impeller. This part is what called the eye of impeller. So as soon as impeller starts to rotate, there is low pressures created at the eye of impeller. So because of existence of low pressure, what happens that liquid is present at the reservoir is getting sucked into the eye of impeller. Got it? Now, अब हम यहाँ पर बात करेंगे pressures की. First of all, at reservoir, what is the pressure of fluid or water? Okay, 1 atmosphere pressure. पॉइंट ए मैंने क्या कंसीडर किया है? रिजर्वायर की मींस लोकेशंस. यहाँ पर हमारी प्रेशर्स कितनी है? हाउ मच प्रेशर्स इज देयर? 1 atmosphere pressure, 1 atm. Got it? सपोज ये हमारी क्या है? सक्शन लाइन, पंप सक्शन लाइन. यहाँ पर मैं पॉइंट बी लेता हूँ. दिस इज पॉइंट सी, एंड दिस एट द आई ऑफ impeller. ओके, एट द eye of impeller, point D, at the eye of impeller, A, B, C and D. यहाँ पर हम प्रेशर्स की बात करेंगे. So now tell me one thing. Which is lowest pressure?
lowest pressure is at D. Means what? Degree of vacuum is greater at D. The degree of vacuum is greater at D. Suppose अगर हमारी यहाँ पर वैक्यूम की डिग्री अगर ग्रेटर होगी, मीन्स व्हाट? प्रेशर लोएस्ट होगी, then only it possible that water or liquid gets sucked into the eye of impeller, because liquid always follow the path from high pressure to low pressure. तो यहाँ पर हमारी क्या है? डिग्री ऑफ वैक्यूम ग्रेटर एज कंपेयर टू पॉइंट बी. द डिग्री ऑफ वैक्यूम, ओके, डिग्री ऑफ वैक्यूम at point D is greater than degree of vacuum at point C, B and C. Okay, degree of vacuum हमारे यहाँ पर क्या है? eye of impeller greater है, and but as compared to point B and C, B पे हमारे, C पे हमारी क्या है? At compared to at the eye of impeller, degree of vacuum उससे वो कम है, ठीक ना? तो यहाँ पर हमारी क्या है? D greater than C greater than B. ये हमारी डिग्री ऑफ वैक्यूम है, इसकी ऑर्डर. मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको? ओके, बिकॉज जो हमारी डिग्री ऑफ वैक्यूम जो D पोजिशंस पे है वो हमारी एक लिमिट तक होनी चाहिए. ओके, वो हमारी लिमिट तक होनी चाहिए. जो हमारी लोएस्ट प्रेशर एट पॉइंट D वो हमारी एक लिमिट तक होनी चाहिए, डिजायरेबल लिमिट होनी चाहिए. ओके, अगर वो डिजायरेबल लिमिट से फॉल्स डाउन होती है तो ये हमारी कैविटेशन होती है. उस पर मैं अभी आता हूं. गॉट इट? नाउ, सो बिफोर गोइंग टू कैविटेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, boiling point of water is 100 degrees Celsius at atmospheric pressure. So this is what called pressure, this is what called temperature. This is what called pressure and this is what called temperature. And boiling point of water is 100 degrees Celsius at atmospheric pressure. One atmospheric pressure in terms of bar, that is 1.013 bar. That is 1.013 bar. What is the boiling point of water? That is 100 degrees Celsius. Now, suppose जो हमारी boiling point of water है वो हमारी two factors पे डिपेंड करती है. Boiling point of water depends on two factor. First one is pressure, second one is temperature. दोनों पे हमारी डिपेंड करती है. ओके, प्रेशर पे भी डिपेंड करिए, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करिए. जैसे जैसे हमारी प्रेशर इंक्रीज होगी हमारी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हमारी प्रेशर डिक्रीज होगी हमारी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगी. सपोज एट 2 bar, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 120 डिग्री सेल्सियस. एट 3 bar, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? अबाउट 133 डिग्री सेल्सियस. जैसे जैसे हमारी प्रेशर इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारी इंक्रीज होगी. सेम एट 0.05 bar, what is boiling point of water? Around 32 degrees Celsius. At 0.04 bar, what is boiling point of water? That is something 28.9. So just say 28 डिग्री सेल्सियस. रफ वैल्यू में लेकर चल रहा हूँ, आप गूगल से एग्जैक्ट वैल्यू देख सकते हो. 0.589 कुछ ऐसे वेरी करें. एट 0.03 व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस. जैसे जैसे हमारी प्रेशर डिक्रीज हुई हमारी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज हो गया. सपोज दिस इज व्हाट कॉल्ड सी वाटर पंप. मैं कंसीडर करके चल रहा हूं ये जो मैंने पंप शो किया है ये हमारी सी वाटर पंप है. अभी हमारे क्या करेंगे? सी वाटर सक करेंगे. मींस व्हाट? यहां पर हमारी कौन सी वाटर प्रेजेंट है? सी वाटर. ओके, सो जैसे ही हमारी इंपेलर रोटेट करेंगे हमारी सी वाटर इज गेटिंग सक्ड इनटू द आई ऑफ इंपेलर. एंड व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ सी वाटर? अराउंड 28 to 29 degrees Celsius. Let assume temperature of sea water is
suppose 29 degrees Celsius. Got it? Means what? जो हमारी लिक्विड सक हो रही है, whatever the liquid is getting sucked into the eye of impeller, उसकी टेम्परेचर हमारी कितनी है? 29 डिग्री सेल्सियस. But now, see, try to understand. Okay, see, अब हमारी यहां पर हमारी क्या है? First of all means bore of impeller is connected with shaft, and that shaft is coupled with electrical motor. And as soon as we supply electrical energy to the electrical motor, and that electrical energy is converted to mechanical energy, that mechanical energy utilized to drive the shaft, and that shaft is connected with the bore of impeller. So shaft rotates, impellers also start to rotate. As soon as impeller rotates, there is low pressures created at the eye of impeller. Mark my word, low pressures created at the eye of impeller. So we must have to ensure that the pressure shouldn't fall below the vapor pressures of fluid at that specific temperatures. Means what? Suppose यहाँ पर हमारी क्या हो रही है? लो प्रेशर्स क्रिएट हो रही है. अगर हमारी सपोज अब हमारी जो लिक्विड जो सक हो रही है उसकी टेम्परेचर कितनी है? 29. सपोज यहाँ पर हमारी क्या हो रही है? लो प्रेशर्स क्रिएट हो रही है. यहाँ पर हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स है, यहाँ पर हमारी क्या होगी? लो प्रेशर्स क्रिएट होगी. मींस मच बिलो फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तभी तो ये हमारी सक होगी, तभी तो हमारी लिक्विड हाई टू लो जाएगी. मींस हमें यहाँ पर एट द आई ऑफ इंपेलर हमारे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर से. तो सपोज मैं यहाँ पर मानकर चलता हूँ हमारी प्रेशर्स इतनी फॉल्स हो गई है कि उसकी प्रेशर्स सपोज 0.03 बार. एट पॉइंट डी प्रेशर इज 0.03 bar. 0.03 bar. So what is the boiling point of water at 0.03 bar? Nearly equal to 24 degrees Celsius roughly. Okay, 0.03 bar पे हमारी boiling point कितनी है? 24 डिग्री सेल्सियस. ओके, मैं आपको रीजन बताऊंगा. यहाँ पर जो प्रेशर्स जो फॉल्स हुई है, ओके, यहाँ पर जो फॉल्स हुई है एक लिमिट, सर्टेन लिमिट से भी नीचे हमारी प्रेशर चली गई है, उसकी क्या कॉजेज है मैं आपको आफ्टर कैविटेशंस के बाद मैं वो चीज एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट कंडीशंस तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था. एयर लॉक, बिकॉज ऑफ एयर लॉक एयर इज गेटिंग ट्रैप्ड एट द आई ऑफ इंपेलर. सो बिकॉज ऑफ lesser mass of air, centrifugal force is directly depend on the mass of air. Centrifugal force can't able to throw the air from the eye of impeller to the periphery of impeller. So this term is called air lock, and because of air lock there is a loss of suction pressure. अगर हमारी suction pressure एक हमारी desired limit तक falls होनी चाहिए. अगर desired limit के below falls होगी तो हमारी cavitations होगी. एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ. टेम्परेचर ऑफ सी वाटर जो हमारी सक हो रही है वो हमारी कितनी है? 29 डिग्री सेल्सियस. नाउ एट द आई ऑफ इंपेलर हमारी प्रेशर्स लो प्रेशर्स हो गई है. मींस यहाँ पर डिग्री ऑफ वैक्यूम इज मच ग्रेटर हो चुकी है. मींस हमारी यहाँ पर एट पॉइंट डी प्रेशर्स हमारी फॉल्स डाउन टू 0.03 बार, एंड एट 0.03 बार corresponding to water boils at 24 डिग्री सेल्सियस. 0.03 बार पे हमारी वाटर 24 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल हो जाएगी. बट हमारी टेम्परेचर ऑफ सी वाटर कितनी है? 29 डिग्री सेल्सियस. नाउ टेल मी वन थिंग, अगर सी वाटर अगर हमारी सक होती है एंड ये हमारी एंटर होती है एट द आई ऑफ इंपेलर, इफ सी वाटर इज गेटिंग सक्ड एंड एंटर इनटू द आई ऑफ इंपेलर, तो सी वाटर हमारी वेपोराइज होगी या नहीं होगी? यस, sea water get evaporated at the eye of impeller. Why? Because at the eye of impeller the boiling point of water is 24 degrees Celsius because of the existence of such low pressure, that is 0.03 bar. Okay, तो हमारी at the eye of impeller हमारी sea water boil हो जाएगी एंड वहां पर हमारी वेपर फॉर्मेशन होगी. इतनी आपको क्लियर है? Now cavitations phenomenon occurs. Now cavitations phenomenon occurs when vapor bubbles moves along the impeller vanes.
ओके, यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, जो भी हमारी सी वाटर है 29 डिग्री सेल्सियस पर है, एंड सी वाटर अब हमारी एट द आई ऑफ इंपेलर्स पे एंटर कर रही है। एट द आई ऑफ इंपेलर्स पे हमारी प्रेशर्स कितनी ड्रॉप्स डाउन होगी, कितनी फॉल्स डाउन होती है ड्यू टू सम रीजंस, वो मैं आगे बताऊंगा। ओके, सपोज मैं एक कंडीशन लेके चल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ एयर लॉक और बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ मे बी द लॉस ऑफ सक्शन प्रेशर। ओके, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सक्शन प्रेशर एट पॉइंट डी प्रेशर हमारी फोर्स होगी 0.03 बार, एंड एट 0.03 बार व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस। मींस यहाँ पर एट द आई ऑफ इंपेलर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 24 डिग्री सेल्सियस पे अचीव हो जाएगी, बट यहाँ पर हमारी टेम्परेचर ऑफ सी वाटर 29 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो हमारी यहाँ पर क्या होगी, वाटर बॉयल होगी एंड यहाँ पर हमारी बबल्स फॉर्मेशंस होगी एट द आई ऑफ इंपेलर। एट द आई ऑफ इंपेलर हमारी क्या होगी, वेपर बबल्स फॉर्म होगी। नाउ cavitation phenomenon occurs when vapor bubbles moves along the impeller fins. Okay, suppose this is what called backward currents. This is what called backward currents. अब हमारे यहाँ पर क्या, वेपर्स बबल्स एट द आई ऑफ इंपेलर। If vapor bubbles moves along the impeller vents, if means what, means cavitation phenomenon occurs when these vapor bubbles moves along the impeller vents, then what happened, pressures start increases. Why pressures start increases? Because of the shape, no, because of the shape. यहाँ पर हमारी क्या होती है, ग्रेजुअली हमारी यहाँ पर क्या होगी, ग्रेजुअली हमारी एरिया क्या हो रही है, बैकवर्ड कर्वेंस की इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हो इसकी एरिया क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, हमारी एरिया क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एरिया इंक्रीज होगी मींस हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, दैट इज p बाय रो प्लस b स्क्वायर बाय 2g प्लस z। ओके, हमारी कांस्टेंट रखनी है तो हमारी प्रेशर्स नीड टू इंक्रीज, हमारी प्रेशर्स इंक्रीज होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी वेपर बबल्स ट्रेवल करेगी अलोंग द इंपेलर वेंस, हमारी क्या होगी, प्रेशर्स इंक्रीज होगी, प्रेशर्स इंक्रीज होगी ना। सपोज यहां पर हमारी 2 बार प्रेशर अचीव हो रही है। सपोज एट दिस पॉइंट पोजीशन ई, मैं कंसीडर करके चलता हूं एट पोजीशन ई, दिस इज व्हाट कॉल्ड पोजीशन ई, एट पॉइंट ई यहाँ पर हमारी प्रेशर जो हो रही है सपोज 2 बार, प्रेशर अचीव 2 बार हो रही है। सो करस्पॉन्डिंग टू 2 बार व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 120 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 120 डिग्री सेल्सियस। सो एट पॉइंट ई हमारी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितनी है, 120 डिग्री सेल्सियस, बट वेपर बबल्स which moves along the impeller vents having the same temperature, the temperature is 29 degree celsius. इस वेपर बबल्स की हमारी टेम्परेचर कितनी है, 29 डिग्री सेल्सियस। What it, but now जैसे ही this vapor bubbles reach to point E, means what, so as the vapor bubbles moves along the impeller vents, so at one point, or we can say at point E, the outside pressures on the bubble is greater than the inside pressures on the bubble. Okay, so hence bubbles collapse. Okay, suppose मैं इसे आपको लार्जर व्यू में आपको शो करता हूं। सपोज ये हमारी बबल्स है, ये हमारी बबल्स है। ओके, अब हमारी क्या होगी, ये बबल्स हमारी कंडेंस्ड होगी। व्हाई कंडेंसेशन, बिकॉज एट पॉइंट ई, ये बबल्स जब हमारी पॉइंट ई पे रीच करेगी तो एट पॉइंट ई हमारी प्रेशर्स कितनी है, 2 बार हमारे यहाँ क्यों प्रेशर्स हो रही है, बिकॉज ऑफ, मैंने आपको बताया एरिया इंक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ बर्नौलीज थ्योरम हमारी प्रेशर्स नीड टू इंक्रीज, तो हमारी प्रेशर्स हमारे यहाँ पर इंक्रीज होगी, दैट इज 2 बार। सपोज ओके, सो एट 2 बार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 120 डिग्री सेल्सियस, but the vapor temperature is still 29 degree Celsius. So when
that vapor bubbles moves along the impeller vanes, and when the vapor bubbles reach to point E, then what happened? The outside pressures on the vapor bubbles is greater than the inside pressures on the vapor bubbles, no? So means what? Vapor bubbles collapse. So ये हमारी सपोज ये हमारी वेपर बबल्स है। अब हमारी क्या हो रही है? वेपर बबल्स हमारी कंडेंस्ड होगी एंड ये हमारी रैपिड प्रोसेस होती है। ओके, ये हमारी क्या होगी? कंडेंस्ड हो रही है। ओके, जो हमारी वेपर बबल्स है वो हमारी क्या होगी? इट स्टार्ट कंडेंस्ड, वो हमारी साइज डिक्रीज होगी। ओके, इट स्टार्ट कंडेंस्ड लाइक एट वन पॉइंट हमारी ये क्या होगी? जीरो। एट वन पॉइंट ये हमारी जीरो पोजिशंस पे आएगी, मीन्स हमारी क्या है? टोटल कंडेंस्ड हो जाएगी एट पॉइंट वन। सो इट क्रिएट्स सोनिक वेव्स ऑन द मटेरियल्स। तो ये हमारी क्या करेगी? सोनिक वेव्स विच लीड्स टू अ वाइब्रेशन। ओके, सम ग्रोलिंग साउंड इज कमिंग फ्रॉम द पंप, दैट इज द ओनली कॉल्ड कैविटेशन। ओके, सो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है? कुछ मेटल्स होगी हमारी रिमूव हो सकती है, और ये हमारी मीन्स ज्यादा टाइम तक होगी तो इट्स लीड्स टू अ पिटिंग, मीन्स सम मेटल इज इटन अवे। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द कैविटेशन। तो नो, ये हमारी क्या है? वेपर बबल्स। अब जो हमारी वेपर बबल्स क्या, वो हमारी कोलैप्स हो रही है, कोलैप्स हो रही है, मींस धीरे धीरे वो क्या हो रही है? कोलैप्स हो रही है, टेंड्स टू जीरो कोलैप्शंस की ओर जा रही है। कहां पर? एट द सरफेस ऑफ इंपेलर। तो जैसे ही वो हमारी जीरो कोलैप्शंस अचीव करेगी, मींस वो हमारी क्या होगी? कंडेंस्ड हो जाएगी। जो भी हमारी वेपर बबल्स हमारी कंडेंस्ड होगी, हमारी क्या होती है? रैपिड प्रोसेस होती है। तो हमारी क्या होगी? कुछ मेटल्स जो होगी वहां से रिमूव होगी, एंड अगर ये हमारी लॉन्ग टाइम तक अगर हमारी पंप कैविटेटिंग हुई तो हमारी यहाँ पर पिटिंग भी हो सकती है। ओके, तो ये हमारी कैविटेशन फिनोमिना होती है। एंड मैं आपको जो हमारी कोलैप्शन, जो हमारी वेपर बबल्स कोलैप्शन है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा स्प्रिंग कॉन्सेप्ट से। सपोज ये हमारी स्प्रिंग है, आप देख सकते हो ये हमारी स्प्रिंग है, ये हमारी सरफेस है। ओके, यहां पर हम लोगों ने फोर्स F अप्लाई किया, तो यहां पर कुछ स्लाइटली कंप्रेस्ड स्टेट पे है, फोर्स F अप्लाई किया। अब हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स होगी सेकंड केस में हमारी ग्रेटर होगी, मींस हमारी क्या होगी? स्प्रिंग फर्दर कंप्रेस्ड होगी। इन सेकंड केस इंटेंसिटी ऑफ फोर्स हमारी क्या है? ग्रेटर है। तो आप देख सकते हो जो हमारी स्प्रिंग जो होगी फर्दर मोर कंप्रेस्ड होगी। नाउ इंटेंसिटी ऑफ फोर्स हम फर्दर ग्रेटर करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ फोर्स हम क्या कर रहे हैं? मच ग्रेटर कर रहे हैं। इन दोनों केस से हम और ज्यादा फोर्स ग्रेटर कर ले रहे हैं, ठीक है ना? F1 F2 F3। ओके ओके, दिस इज F3। नाउ वी हैव स्टिल ऑप्शन टू इंक्रीज द फोर्स, बट अब यहाँ पर हमारी क्या है? जो स्प्रिंग है, जो हमारी स्प्रिंग है, ये हमारी सॉलिड लेंथ अचीव कर चुकी है। हमारे पास फोर्स, और हम फोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्दर हम स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर सकते हैं, बट अब हमारी स्प्रिंग जो है ऑलरेडी हमारी सॉलिड लेंथ अचीव कर चुकी है। अगर हम फर्दर फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हम कोशिश करते हैं स्प्रिंग को फर्दर कंप्रेस्ड होने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्प्रिंग रीचेस इट्स सॉलिड लेंथ। नाउ स्प्रिंग नॉट एबल टू कंप्रेस फर्दर। अगर हम फोर्स फर्दर अप्लाई करते हैं तो हमारी क्या होगी? जर्क होगी। वो हमारी क्या होगी? जर्क क्रिएट होगी एट द सरफेस पे हमारी जर्क क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्प्रिंग की हमारी सॉलिड लेंथ अचीव कर चुकी है, वो हमारी अब फर्दर कंप्रेस्ड नहीं होगी। ओके, यहाँ पर हमारी स्पॉन्जी एक्शन थी, ओके, बट यहाँ पर हमारी वो अब नहीं है, हम स्प्रिंग हमारी फर्दर कंप्रेस्ड नहीं हो सकती है। सेम हमारी यहाँ पर केस है, ये हमारी क्या हो रही है? बबल्स है। ओके, ये हमारी क्या है? बबल्स है। अभी हमारी क्या हो रही है? कोलैप्स हो रही है, बबल्स हमारी कोलैप्स हो रही है। व्हाट इट? बबल्स हमारी क्या हो रही है? कोलैप्स हो रही है, हमारी कोलैप्शंस है। एट वन पॉइंट ये हमारी क्या होगी? जीरो कोलैप्शंस होगी, जिसके चलते सरफेस पे जो हमारी अब ये कोलैप्शंस है, जो बबल्स है, वो हमारी एक
फोर्स की तरह एक्ट कर रही है एट द सरफेस। ये हमारी सरफेस पे क्या कर रही है, फोर्स की तरह एक्ट कर रही है। ये हमारी सरफेस क्या इंपेलर है, ओके। जो हमारी कोलैप्सेंस ऑफ बबल्स जो प्रोसेस है वो हमारी क्या है, फोर्स की तरह एक्ट कर रही है, ओके, फोर्स की तरह एक्ट कर रही है। अब ये हमारी क्या हो रही है, फर्दर कोलैप्सेंस हो रही है, एंड एट जीरो कोलैप्सेंस, ओके, ये हमारी क्या होगी, एक शॉक वेव क्रिएट होगी, एक जर्क प्रोड्यूस क्रिएट होगी एट द सरफेस ऑफ इंपेलर, जिसके चलते हमारी मेटल्स क्या होगी, रिमूव होगी। एंड ये अगर हमारी मींस कुछ टाइम तक रहा तो इसके चलते हमारी फिटिंग भी हो सकती है। तो ये हमारी कैविटेशंस होती है, पंप कैविटेशन। सो ड्यू टू कैविटेशन, पंप कैविटेशंस, इससे हमारी क्या हो सकती है, हाइड्रोलिक पंप परफॉर्मेंस की भी डिक्रीमेंट होगी। हाइड्रोलिक पंप परफॉर्मेंस में वैसे मैं आपको आगे पंप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स में मैं बताऊंगा, बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी ब्रीफ आइडिया देता हूँ। सपोज दिस इज हेड H, this is Q flow rate, okay, this is in feed, this is in GPM, okay, and okay, what it now this is what the pump characteristics curves. So अगर हमारी पंप कैविटेशन से, अगर हमारी पंप में कैविटेशन है तो ये हमारी जो परफॉर्मेंस कर्व होगी ड्रॉप्स डाउन होगी, मींस हमारी हेड की डिक्रीमेंट होगी और फ्लो रेट की भी डिक्रीमेंट होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है। एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रेक अवे। दिस प्रोसेस इज ब्रेक अवे, मींस जो हमारी एक्चुअल कर्व है उससे हमारी अवे जा रही है ड्यू टू पंप कैविटेशंस, ओके। तो ये हमारी पंप्स कैविटेशंस हो रही है, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे कैविटेशंस की कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ, मींस विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कैविटेशंस कब ऑकर हो सकते हैं, मैं उस पर बात करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी दो टाइप्स की हेड होती है। फर्स्ट वन इज दैट इज सक्शन हेड और डिस्चार्ज हेड। सक्शन हेड दैट इज टोटल सक्शन हेड व्हिच कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक हेड प्लस डायनामिक हेड, दैट इज टोटल सक्शन हेड दैट इज स्टैटिक हेड प्लस डायनामिक हेड। And what is static head, that is PS by rho, and what is dynamic head, that is ds square by 2g, and what is PS, जो भी हमारी फ्लूइड जो सक हो रही है उसकी प्रेशर, that is suction pressure, and what is rho, that is you know, and VS, what is the VS, that is जो भी हमारी फ्लूइड सक हो रही है उसकी सक्शन वेलोसिटी, okay, so that is called, this is what called total suction head. If the total suction head of fluid falls below the corresponding to the head of vapor pressure, that is PV by rho. अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो हमारी पंप कैविटेशन होगी। दैट इज ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड टोटल सक्शन है, एंड जो हमारी राइट हैंड साइड है वो हमारी क्या है, हेड corresponding to the vapor pressure of fluid, ओके। तो हमारी हेड corresponding to the vapor pressure of fluid if that PV by rho, if head corresponding to the vapor pressure of fluid greater than the total suction head leads to pump cavitations, तो हमारी pump cavitations होगी, ओके। सो ये हमारी मैथमेटिकल अप्रोच थी, ओके। कैसे हमारी मैथमेटिकल अप्रोच से हम लोगों ने कैविटेशंस ऑकर्स होती है, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में ब्रीफली डिस्कस करूंगा NPSH, दैट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, कॉजेज ऑफ कैविटेशंस, व्हाट इज NPSHA, दैट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल, व्हाट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।